عزیزان ملت اسلامیہ، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہمارے بیچ سے اب رخصت ہو گیا۔ اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں لوٹنے کے لیے اب 1 سال اور انتظار کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت کے فیض و کرم کی بارشوں میں نہانے کے لیے اب 1 سال اور انتظار کرنا پڑے گا۔ بخشش و رحمت اور نجات کا عشرہ حاصل کرنے کے لیے اب 1 سال اور انتظار کرنا پڑے گا۔ مگر میرے عزیزو، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کسی بھی دنوں میں، کسی بھی لمحات میں محروم نہیں کرتا۔ بندہ اگر اپنی رب کی عبادت کرے، بندہ اگر اپنے رب کو یاد کرے، چاہے وہ کوئی بھی دن ہو، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو پورا اجر عطا فرماتا ہے۔ بندہ اگر نمازی ہو اور اللہ رب العزت پر پورا توکل ہو تو پھر کوئی بھی چیز اسے دنیا کی ستا نہیں سکتی، پریشان نہیں کر سکتی۔ ایک بزرگ حج کو جا رہے تھے، کشتی پہ سوار ہیں، حج کے لیے جب نکلے موج طوفان اٹھا، ایک بھنور آیا، ایک تلاطم اٹھا سمندر سے، اور کشتی سمندر کے بیچوں بیچ میں ہچکولے کھانے لگی۔ ملاح آیا، اس نے اعلان کر دیا اس کے لنگر اب میرے بس سے باہر ہے، اب اس کو میں نہیں چلا سکتا، اب اس بھنور میں، اس طوفان میں، اس تلاطم میں اس کو میں نہیں سنبھال سکتا۔ اپنے اپنے خداؤں کو، اپنے اپنے رب کو یاد کر لو، یہ کشتی ڈوبنے والی ہے، یہ جہاز ڈوبنے والا ہے۔ سارے جہاز میں بھگدڑ مچ گئی، چیخ و پکار ہونے لگی۔ وہ بزرگ اور ان کی والدہ بیٹھی ہوئی تھی، سارے جہاز میں بھگدڑ، اور سارے لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے، اپنی جان کی پناہ تلاش کر رہے۔ مگر دیکھا ایک بوڑھی عورت، ایک بزرگ انسان سکون اور شانتی کے ساتھ اس جہاز میں بیٹھا۔ ملا آیا، اس جہاز کے چوکیدار آئے، انہوں نے کہا آپ شانت کیوں بیٹھے ہو؟ کہ آپ کو موت کا ڈر نہیں ہے؟ آپ کے دل کو اتنا سکون اور چین کیسے ہے جبکہ اس ماحول میں سارے لوگ رو رہے، تم سکون سے کیسے بیٹھے ہو؟ تو ان بزرگ نے کہا یہ کشتی مجھے نہیں ڈبا سکتی، یہ سمندر، یہ طوفان مجھے ڈبا ہی نہیں سکتا۔ تو کہا میں نے سارے کام کر کے دیکھ لیے، میں نے سارے ہتھ کنڈے اپنا کے دیکھ لیے، کشتی جہاز میرے بس میں نہیں آ رہا، اور تم کہہ رہے ہو جہاز ڈوبے گا نہیں، تمہارا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جہاز بھلے ہی ڈوب جائے مگر میں نہیں ڈوبوں، جہاز ڈوبتا ہے تو ڈوب جائے، میں نہیں ڈوبوں گا۔ ملا نے بازو پکڑا، کہنے لگے تمہیں بتاؤ اتنا یقین، اتنا توکل کیسے ہے، اتنا بھروسہ کیسے ہے جہاز ڈوب جائے گا تم نہ ڈوبو گے؟ انہوں نے کہا میں نے اللہ کے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ جب تم سفر کو نکلو تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون پڑھ کے نکلا کرو، سفر آسان ہو جائے گا، بلاؤں مصیبتوں اور حادثوں سے محفوظ رہو گے۔ کہتے جب میں کشتی میں سوار ہوا تھا تو یہ دعا پڑھ کر بیٹھا تھا، اب مجھے یقین ہے جب میں نے یہ دعا پڑھ لی ہے تو مجھے کوئی بھی طوفان مار ہی نہیں سکتا۔ اللہ پر اگر اتنا بھروسہ کر لیا، اتنا توکل کر لیا تو انشاءاللہ ہمیں کوئی طوفان ڈبوا نہیں سکتا۔ اور لوگوں نے دیکھا طوفان آیا، کشتی نے ہچکولے کھائے، جہاز ڈگمگایا، مگر وہ کشتی ڈوب نہ سکی۔ اور ہو سکتا ہے ایک ہی بندے کی وجہ سے، اسی اللہ والے کی وجہ سے وہ سارا جہاز بچ گیا۔ پوری بستیاں غرق ہونے سے ایک عبادت گزار بندے کی وجہ سے بچ گئی ہیں، اور پوری عبادت گزار والی بستیاں ایک گناہگار کی وجہ سے اللہ نے غرق کر دی، نست و نابود کر دی۔ اس لیے اللہ پر پورا توکل اور بھروسہ رکھو، نماز کو قائم کرو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، کئی مرتبہ اللہ نے قرآن میں نماز کا حکم دیا ہے کہ آپ نماز پڑھو۔ مسجدیں اگر ویران ہو گئیں تو تم دنیا آباد کسی دیش کی کرنسی سے نہیں کر سکتے، کتنا بھی نوٹ آ جائے تمہاری دنیا آباد نہیں ہو سکتی۔ تم پہلے نماز قائم کرو، اللہ تمہاری دنیا خود آباد کر دے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم جتنا اللہ کی طرف رجوع کریں گے اتنی ہی زندگی ہماری آسان ہوتی چلی جائے گی۔ جتنا ہم اللہ پر اپنا بھروسہ باندھیں گے اتنا ہی اللہ رب العزت ہمیں انعام و کرام سے نوازے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب تم اللہ پر ہی بھروسہ کرو گے تو اللہ آگ کو گلزار بنانے والا ہے۔ تم نے یہ سوچ لیا مر جاؤں گا، شاید ڈاکٹر نہ بچائے گا تو نہ بچوں گا،
एतबार तो तुम्हारा अच्छा है, जरिया बनाओ डॉक्टर को, खुदा मत बनाओ डॉक्टर को कि यही जिंदगी देगा। जरिया है, जरिया बनाओ। आज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, फरिश्ता आया, कहने लगा हुजूर हुक्म दे दीजिए, मैं पानी का फरिश्ता हूं, बारिश का फरिश्ता हूं, आप हुक्म दोगे इस आग को मैं ठंडा कर दूंगा, पानी बरसाऊंगा, दरिया बहा दूंगा यहाँ पानी के, हुजूर हुक्म दे दो। कहा तू आया है मेरी मदद करने? नहीं, मेरा रब मेरे लिए काफी है। पानी का फरिश्ता आया, हवा का फरिश्ता आया, दीगर फरिश्ते आए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद करने के लिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कहना यही था, अगर अल्लाह चाहता है इब्राहीम जल जाए तो फिर तुम ना बचा सकोगे, और अल्लाह चाहे हजरत इब्राहीम बच जाए तो फिर मुझे कोई नमरूदी आग जला नहीं सकती। तवक्कुल इतना, भरोसा इतना, अल्लाह ने आग में गिरने के बाद फिर आग को गुलजार बनाया। आग में गिरने के बाद, ये दुनिया की जो आग है ना, ये दिखने में बड़ा मुश्किल लगती है, दिखने में बड़ा शदीद लगती है, मगर मेरे अजीजों अल्लाह ने इसके अंदर बड़ा इनाम रखा है। बादशाह का दौर था, बादशाह ने अपनी सल्तनत में ऐलान करा दिया कि कोई भी बंदा अगर मुझे रब ना मानेगा कत्ल कर दिया जाए। सारी बस्ती में ऐलान कर दिया गया। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, मैं ये सोचा करता था कि पहले के जो मुसलमान थे बादशाह पकड़वा के लाया करते था और कहा करता था मुझे रब मान, तो कुछ लोग कह देते थे हाँ तू रब है, तू रब है, और उसकी पूजा करने लगते थे। मैं ये सोचता हूं आज का माहौल देख के, मॉब लिंचिंग हो रही है, लोग पकड़कर नारे लगवा रहे हैं अपने अपने। कुछ मुसलमान मर भी जाते हैं, नारे नहीं लगाते, और कुछ मुसलमान नारे लगाकर छूट जाते हैं। मगर मेरे अजीजों, उन लोगों को भी इसी तरीके से पकड़कर कहा जाता था कि आज आओ और मुझे रब कहो। बादशाह ने ऐलान करा दिया, एक दीवानी, एक अलमस्तानी, अल्लाह से डरने वाली, चाहने वाली उसी बस्ती में रहा करती थी। उसके सिपाही, बादशाह के सिपाही पहुंचे और कहा तो किसको रब मानती है? हमारे बादशाह को रब मानती है। उसने कहा मैं अपने बादशाह को रब मानती, मैं किसी के बादशाह को रब नहीं मानती, मैं अपने बादशाह को मानती हूं। सिपाहियों ने पूछा तेरा बादशाह कौन है? औरत कहने लगी वही मेरा बादशाह है जो तेरे बादशाह का भी बादशाह है, जो तेरे बादशाह का भी बादशाह है वो मेरा बादशाह है। अल्लाह अकबर। औरत का जवाब सुन करके सिपाही बड़ा हैरान हुए। सारी बस्ती के जो है माहौल चेक कर गए बादशाह के दरबार में, कहने लगे हुजूर इस बस्ती का सारे इलाके के लोग तुम्हें खुदा मानते हैं, मगर एक झोपड़ी में रहने वाली औरत है वो तुम्हें खुदा नहीं मानती, उसका खुदा कोई और है। अल्लाह अकबर। सिपाहियों को हुक्म दिया कि अगर उस औरत को पकड़ाना का, गिरफ्तार नहीं किया गया तो ये बस्ती का माहौल खराब कर सकती है, इसे गिरफ्तार करके लाया जाए। अल्लाह अकबर। औरत को गिरफ्तार करके लाया गया। शीरख्वार बच्चा, छोटा सा बच्चा गोद में है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। औरत को जब बादशाह के दरबार में लाया गया, बादशाह ने फेस टू फेस पूछा तो किसको रब मानती है? अल्लाह अकबर। कहती है मैं उसको रब मानती हूं जिसे तुझे जिसने पैदा किया है। अल्लाह अकबर। बादशाह हैरान हो गया। बादशाह ने कहा एक एक करके ही बगावत शुरू होती है, ये आज बगावत करती है। बादशाह ने कहा आग का कुआं इब्राहीम की तरह लगाया जाए, जैसे इब्राहीम को नमरूद ने आग में डाला ना, ऐसे इस औरत को भी आग में डालो, ताकि ये सबक बन जाए, ये नसीहत बन जाए कौम के लिए कि मैं बादशाह और मेरे खिलाफ कोई चले तो उसकी सजा सिर्फ मौत है। आग का कुआं दहकाया गया और सामने देख रही है, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, चेहरे पे कोई फिक्र नहीं, कोई गम नहीं, मौत का डर नहीं, आग जलते हुए देख रही। बादशाह ने कहा कि बोल किसको रब मानती है? तो औरत ने कहा जितनी बार तू पूछेगा ना उतनी शान से मैं अपने रब का जिक्र करूंगी, जितनी बार तू पूछेगा उतनी अच्छे करके बताऊंगी कि मेरा रब वो है कि जिसने आसमानों को बनाया है, मेरा रब वो है जिसने दरियाओं को रवानी, मौजों को तुगयानी, समंदर को सैलानी अता करी, मेरा रब वो है जिसने पहाड़ों को बुलंदियां अता की, मेरा रब वो है जिसने चांद सूरज को चमक अता की है, मेरा रब वो है जिसने तुझ जैसे बंदे को सांसें अता की है। तू जितना पूछेगा उतनी ही शान से मैं अपनी रब की शान बयान करूंगी। अल्लाह अकबर। कहा उसे आग के दरिया में डाल दिया जाए। एक वजीर ने कहा हुजूर इसे ना डालो, इसे डालोगे तो हो सकता है इसकी वजह से भी आदमी जो है बगावत में उतर आए। पहले इसकी गोद में जो बच्चा है ना, इस बच्चे को डाल दे, मां है ममता जाग जाएगी, या आपको अपना रब मानने लगेगी। इसके बच्चे को गोद में लेकर इसे मारने की धमकी दो, ना माने तो इस बच्चे को आग में डाल दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बच्चे को गोद से छीन लिया गया। मां रोने बिलखने लगी, कहा मेरे बच्चे को कुछ ना करना, मेरे बच्चे को कुछ ना करना। अल्लाह अकबर। इतना कहा, पूछा बता किसको रब मानती है? औरत ने कहा मैं रब तो उसी को मानती हूं, नाम चाहे जो हो जाए, रब तो मैं उसी को मानूंगी। अल्लाह अकबर। वजीर ने बच्चा लिया, आग में डाल दिया। आग में डालने के बाद औरत कुएं की दरार पर खड़े होकर जारों
कतार रोने लगी। माँ थी, ममता जाग गई। अल्लाह अकबर, अगर जानवरों की भी माँ होती वो भी तड़पती लगती है तो इंसान की माँ थी। अल्लाह अकबर, ज़ारो कतार रो रही है कुएं के दरार पर खड़े होकर। बादशाह ने कहा बता आप किसको रब मानती है? मैं हयात और मौत देने वाला हूं, अगर तू मुझे रब मानेगी तो मैं तुझे माफ कर दूंगा, तू मुझे रब मानेगी मैं तुझे मालो दौलत अता कर दूंगा, तू मुझे रब मानेगी मैं तुझे एक कोठी बनाकर दे दूंगा, तू मुझे रब मानेगी जमाने में तुझे मशहूर कर दूंगा, तू मुझे रब मानेगी मैं तुझे इज्जतदार बना दूंगा। औरत ने कहा अरे तुझे जिसने इज्जत दी है वो मेरा रब है, तू मुझे क्या इज्जत देगा? अल्लाह तुझे करीब ऐसा जलील करेगा कि जमाने में कोई ऐसा जलील ना हुआ होगा, मुझे तेरी दिए हुए इज्जत की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर, औरत को सिपाहियों ने पकड़ा, बादशाह ने हुक्म दिया बाजू पकड़कर कुएं में डाल दिया जाए। रोते बिड़कते हुए खचेड़ते हुए ले जा रहे थे, औरत को जमीन से घसीटते हुए ले जा रहे थे। अल्लाह अकबर, कुएं के दरार पर पहुंचे, कुएं के अंदर से आवाज आती है ए मेरी माँ, इनके गिराने से कुएं में मत आना। यारे तू टेंशन क्यों लेती है, फिक्र क्यों करती है? अल्लाह ने दुनिया की नजरों को दिखाने के लिए कुएं के ऊपर तो आग रखी है, अल्लाह ने कुएं के अंदर जन्नत बना के रख दी है। अल्लाह ने कुएं के अंदर जन्नत बना के रखी है। ए मेरी माँ, अपने आप छलांग लगा दे। अल्लाह अकबर, जमाने के लोगों ने देखा था, जमाने ने जब देखा था औरत ने खुद कुएं में छलांग लगा दी है, कसम खुदा की हजारों लोग पलटकर इस्लाम की तरफ आ गए थे और यही कह रहे थे आज भी हो सकता है इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। मेरे अजीजों, अगर तुम्हारा ईमान इतना पुख्ता होगा तो ये जमाने की आग जो तुम्हें ऊपर लगी हुई दिख रही है, इसके अंदर जब तुम अल्लाह का नाम लेकर जाओगे तो अंदर गुले गुलजार तुम्हें मिलेगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह और दीन के रास्ते में बड़ा कठिनाइयां। हक बोलने में तुम बोलोगे हक तो यह समझना तुम्हारी जबान कटने का भी नंबर आ सकता है। आज ये पुरफितन दौर है, मगर अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ निकलोगे तो ऊपर तो ये जमाने की आग दिखेगी, अंदर तुम्हें अल्लाह अकबर जन्नत के नजारे मिल जाएंगे। इसलिए अल्लाह पर भरोसा इतना रखो कि वो अगर चाहेगा तभी तो हो सकता है ना। अगर उसने चाहा तभी हमारे काम बनेंगे, उसने चाहा तभी हमारे बिगड़े काम बनेंगे, तभी हमें सेहत मिलेगी, तभी सलामती मिलेगी, तभी रोजगार में बरकतें पैदा होंगी। उसने अगर नहीं चाहा तो मौलाना साहब तुम्हें तावीज़ों की दुकान बना दे, तुम्हारे गले में, तुम्हारी 20 उंगलियों में, तुम्हारे पेट पे, तुम्हारे कमर पे, तुम्हारे गले में, तुम्हारे डंडों पे कितने भी तावीज बांध दे, कोई असर नहीं करना। हम नमाज पढ़े ना पढ़े तावीज हमारा काम कर जाए। तो इसलिए अगर तवक्कुल अल्लाह पर बांध लिया और ये सोचा आज जो घर में परेशानी है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नाम के सदके में मेरी मुश्किलें दूर कर दे, और दर दर पर भागेगा तो हर जगह एक नई बीमारी लेकर लौटेगा। अल्लाह से दुआ करे मौला करीम जिस मुश्किल में मुझे शैतान ने फंसाया है ना, तुझसे बड़ा कोई हकीम नहीं, तुझसे बड़ा कोई अलीम नहीं, तुझसे बड़ा कोई फैसला करने वाला नहीं। मौला तो अपना ऐसा कर्म कर दे मेरी परेशानियां दूर हो जाए। जब ये तवक्कुल के साथ अल्लाह से दुआ करेगा तो इंशाअल्लाह उसकी मुश्किलें आसान हो जाए। नमाज के पाबंद बनो, घर पे भी माहौल बनाओ नमाज का, तब हर तावीज काम कर जाएगा। अल्लाह खुद कहता है अकीमुस्सलात वातुज़ ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। नमाज से बड़ी दौलत कसम अल्लाह की दुनिया में कोई है ही नहीं। मैं अपने नबी की बात बताऊं, मेरे नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अल्लाह ने मुझे दुनिया पे 63 साल की उम्र दी, मैं दुनिया पे 63 साल रहा, मैंने दुनिया पे 63 साल गुजारे। मैं ये दुनिया में मैं ये सोचता हूं मैं 63 साल गुजारता कैसे? अल्लाह का शुक्र है उसने मुझे नमाज अदा कर दी, मैंने अपना टाइम इसमें गुजार लिया। हुजूर कहते हैं अगर अल्लाह नमाज अता ना करता तो मेरा दुनिया में दिल ना लगता। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ये दुनिया में मेरा दिल लगा ही इसलिए था क्योंकि अल्लाह ने नमाज अता की। तो इसलिए नमाज बड़ा अनमोल चीज है। अल्लाह से मुलाकात, सोचो, अरे तसव्वुर करो, लोग जाते हैं अपने अपने खुदाओं के सामने और सवाल तो करते हैं, जवाब नहीं मिलता है ना। सवाल तो कर दिया खुदा से, अपने खुदा से सवाल करा हम परेशान हैं, बीमार हैं, तंगदस्त हैं, मगर जवाब ना मिला। कुर्बान जाओ, जबकि उनका खुदा उनके सामने है। तुम्हारा खुदा तो पर्दापोश है, तुम्हारा खुदा तो छुपा हुआ है, मगर तुमने सवाल किया तो अल्लाह ने कुरान में जवाब अता कर दिया है। कुरान में जवाब अता कर दिया। तुमने कहा है मालिक मौला बड़ा बीमार हो, अल्लाह ने कहा अलीमुन हकीम, बेशक मैं सबसे बड़ा हकीम हूं, मुझसे ज्यादा बड़ा डॉक्टर कोई नहीं, मुझसे ज्यादा हकीम कोई नहीं, मुझसे ज्यादा बड़ा तबीब कोई नहीं। फिक्र मत कर, आता रहे मेरे घर में। जब डॉक्टर के पास ज्यादा जाएगा तो जल्दी सेहत होगी, अगर ज्यादा बड़ा बीमार है तो एडमिट ही हो जा। अल्लाह कहता है मेरे बंदे अगर ज्यादा तकलीफ है तो यहीं बैठ जा, है
میرے گھر میں بیٹھ جا, فکر نہ کر, سب سے بڑا حکیم میں ہوں. ڈاکٹر نے کہا حالت زیادہ خراب ہے, ایڈمٹ کرنے پڑے گا, طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے, جو ہے ڈاکٹر زیادہ ٹائم روکتا ہے. میرے بندے دنیا کی تکلیفیں زیادہ ہو, میرے بندے دنیا کی تنگ دستیاں پریشانیاں زیادہ ہو, تو تم فکر نہ کرنا, زیادہ ٹائم میرے گھر میں بتا لینا, اور زیادہ ٹائم میرے گھر میں بتائے گا تو میں تجھے گناہوں سے بھی پاک کر کے بھیجوں گا اور پریشانیوں سے بھی پاک کر کے بھیجوں گا. اس سے بڑا نہیں ہے کوئی حکیم اور ڈاکٹر اور طبیب. سب سے بڑا رحمان, سب سے بڑا حکیم وہی ہے. مگر کیا ہے, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں. میں ہر بار یہی بتاتا ہوں, یہ وہ گھر ہے جس کے بیٹھنا بھی عبادت, جس میں ایک ایک سانس لینا عبادت. تو ایسا گھر زمانے میں ہے ہی نہیں کسی کا کہ جس میں اتنی بڑی فیسلٹیاں ملتی ہوں. یہاں بیٹھنا عبادت.